Hello, everyone. Welcome to Unmute with Ignitia, episode 6. And today I have someone extremely important and special who's very close to our heart. We met this lady I think, a month back, and in our school, she came, met the parents, and everybody became her fan. And I have none other than Captain Sunena. Thank you so much, Monica. Thank you. So, Captain Sunena, because thank you for being at Unmute with Ignitia. It's a little different episode और आज हम थोड़ा different भी कर रहे हैं because we don't have a team, we have you. Because when I met you, I understood that whatever we wanted to discuss under Unmute with Ignitia, you've been already speaking about, your page speaks, your personality speaks about that. So I thought, why not हम ही बात करें? We both have a child of same age group, right? So I think maybe we connect more and then we can begin further about it. Yeah. So, thoda sa agar if I tell you a little background, that over the last 5 episodes we had of Unmute with Ignitia, we've met a lot of students because we're talking about Gen Z. So, we met a lot of students. I understood that, what were their points. I met the parents. Last we met a lot of people who were in the system. So definitely there was a lot of issues and concerns that children are lazy, they were labeled, they were, they confused रहते हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है. Like, you must be meeting a lot of parents and then they all speak about it. But what eventually every episode resulted into that we're not talking to them. We're not listening to them because as a mother, even I feel, and I've seen my own son, when we listen and at the right way, children do understand. Yeah, exactly. And lastly, like I did share with you जब हम अपने पहले बातें कर रहे थे, that we all are just want that we all are really struggling hard to ensure that these children do have a better future, right? हम सब मेहनत कर रहे हैं, schools लगे हुए हैं, parents लगे हुए हैं, high best parenting, this, that, whatever. But ultimately जब हमने सारा package ready करके इनको बाहर छोड़ते हैं, हम बोलते हैं ये lazy हैं. So where is that struggle and where is that gap? And this is why today we both are talking, because you resonate about the stand, what we want to take, whatever we want to share with the people. So last converse, because we always join the dots which had happened in the last episode. In the last episode, we understood that there was trust issues. There are a lot of trust factor. इसीलिए ना schools, पेरेंट्स स्कूल्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, स्कूल्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, पेरेंट्स पे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो या व्हाट इज योर टेक ऑन द ट्रस्ट इश्यूज? या When you use this trust ना, I think जिंदगी के अंदर सबसे कोई खूबसूरत चीज है ना, that's trust only. And we all will agree, be it any relationship, be it with our own parents, be it with our own partners, be it with our own kids, anywhere. और मुझे से लगता है ये दुनिया भी शायद ट्रस्ट पे ही चल रही है. करेक्ट. आज हम सड़क पे गाड़ी लेके निकलते भी हैं बिकॉज वी ट्रस्ट द अदर पर्सन, वो आके नहीं मारेगा, और देन ओनली वी आर एबल टू मूव आउट ऑफ आवर हाउस. एब्सोल्युटली. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सोसाइटी ना, हम सिखा तो रहे हैं, वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट. ओह बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मतलब हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट वहां पे जाए, बेस्ट कोचिंग क्लासेस मिले, बेस्ट वो. हम सिर्फ उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उनके रोल मॉडल्स नहीं बन पा रहे हैं. यस, मे बी यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई एम नॉट टॉकिंग हियर जस्ट एज अ पेरेंट, समटाइम एज अ टीचर, एंड वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. सो लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटी. हमसे ही बनी है ना, आपसे और मेरे से बनी है. एब्सोल्युटली. तो वो कहीं ना कहीं वहां पे लैक कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो बताने से नहीं आती हैं, ऑब्जर्व करने से आती है. अब ये पेरेंटिंग जैसी जो चीज आज के टाइम में इतनी चैलेंजिंग, हमारे माँ बाप ने तो शायद वो कभी कोशिश भी नहीं की थी. ट्रू. हमने कभी सुना नहीं पेरेंटिंग वर्ड उस टाइम के अंदर. हाँ, we never heard of it. But आजकल we have to ensure that जैसे कोई प्रॉब्लम आती है in schools, let's have a parenting session. Yeah. What gets attached to a parent, जो वो समझ पाए, जिसकी स्टोरी उस पेरेंटिंग कोच से समझ पाए, that is a different story. नहीं तो सब confused है पेरेंटिंग में. Everybody is little conscious about being the best parent. Yeah. But what is that best? बेस्ट कभी वो भी नहीं सकता है. Right. हमारे माँ बाप ने कभी बेस्ट बनने की कोशिश नहीं करी. कोई होड़ नहीं थी, कोई परफेक्ट नहीं था. शायद वो इसको ना पेरेंटिंग को एज अ जॉब नहीं लेते थे. इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. जितना था वो उतना जो वो कर रहे थे. आई थिंक व्हेन हमारी जनरेशन की अगर हम बात करें, वी ऑल मिडिल क्लास फैमिली, आराम से नॉर्मल. माई बोथ पेरेंट्स वो वर्किंग एट दैट टाइम. ठीक है, जब हम घर आते थे
I have seen them doing so many things. I can't tell you also. उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारा बचपन में ख्याल रखना है, हम ऐसे हो जाएंगे, तुम्हें बड़े होके ये बनना है. नेवर एवर. द ओनली थिंग वाज, यार बच्चों अपने पैरों पे खड़ा होना है. बट आई हैव सीन माई पेरेंट्स डूइंग ऑल दीज थिंग्स. मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए मर के, बुआ के बच्चों को अपने घर लाके पढ़ाते हुए, मामा के बच्चों को लाके करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है. मैंने कभी उनको अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं देखा. So that's how you've also adapted that? Yes. और जब मैं अपनी मदर की भी बात करती ना, उस टाइम में ना मैंने कभी अपनी मदर को कहते नहीं सुना कि मतलब ना कि मैं ये सेक्रीफाइस कर रही हूं तुम्हारे लिए, मैं ये कर रही हूं तुम्हारे लिए, मैं ये कर सकती थी, वो नहीं करती थी. इट वॉज देयर इन द सोसाइटी, इट वॉज देयर इन द कल्चर. चीजें बड़ी आसान थी. ट्रस्ट बन रहा था बिकॉज ट्रस्ट तोड़ने वाले लोग बहुत कम दिखते थे. Exactly. So in the society itself, we have hardly seen, मतलब it's not about कि मतलब आज के टाइम में when it comes to अगर आप 2 दिन Amazon और Netflix देख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि दुनिया कल ही खत्म हो जाएगी. Exactly. हमारे लास्ट एपिसोड में हमने यही बात की कि जरूरी नहीं है. ऐसा हम बोलते हैं कि पेरेंट्स आर वेरी कंफ्यूज, वो स्कूल्स पे या यूनिवर्सिटीज पे या किसी पे भरोसा नहीं करते, पर वो गलत भी नहीं है. बिकॉज द मोमेंट दे सी न्यूज एंड ऑल, देयर सो मच हैपनिंग अराउंड. Like you rightly said about your family, my family also from a very humble background. I used to always feel कि भाई मेरे पापा, why are you trusting me so much? आप मुझे हर कुछ अलाउ कर रहे हो जाने के लिए, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ and all. Because I think society still adapted that. हमारे पेरेंट्स शायद वो नहीं कर पा रहे थे, वो हम पे भरोसा दे रहे थे तुम कर लो, पर हम यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में उनको लेके बैठे हैं शायद अपने बच्चों को, और शायद इसीलिए बिकॉज वॉट इज गोइंग अराउंड. पर इसका क्या, हाउ डू यू ब्रेक दिस बैरियर? बिकॉज चीजें तो चलती रहेंगी सुनैना मैम, एंड बट पेरेंट्स को, बिकॉज मैं आई एम श्योर यू मीटिंग लॉट ऑफ जेंजीज दीज डेज. आई मेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन विद देम ओनली. दे सेड मैम पेरेंट्स हम पे भरोसा ही नहीं करते. वो पहली वैसे वी इवन इफ वी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन और समथिंग, हमें पता है वो आंसर नहीं होएगा, एंड दे विल टेक अस बैक टू देयर ओल्ड टाइम which is not in current times. ये डिफरेंट हो चुकी है लाइफ. तो फिर हम क्या जवाब दें? तो वही मैं बोलती हूँ, बच्चों से ज्यादा हम पेरेंट्स को समझने की जरूरत है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मेरी अपनी लाइफ का. सो माय फादर वाज माय कोच. दंगल स्टोरी. कोई पैम्पर्ड चाइल्डहुड नहीं था मेरा ना, कि मतलब आज के टाइम में ना चीजें हम गिल्टी पेरेंटिंग से ज्यादा कर रहे हैं. Yes, that's the word. Yes. और उसको हम कंपनसेट, मतलब पेरेंटिंग हमारी समझदारी से नहीं आ रही है, हमारे एक्सपीरियंसेस से नहीं दिखा रहे हैं, हम अपनी गिल्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं. जो टाइम हम अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंड्रीज ना सेट करके, उनको एक्स्ट्रा फ्रीडम देके, एक्स्ट्रा चीजें देके, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका PS5 हो, चाहे वो कुछ भी हो, बाहर जाने की परमिशन हो कि बिकॉज इफ आई एम गोइंग यू आर गोइंग. इट्स लाइक कि हम थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव होके चीजें कर रहे हैं, गिल्ट के साथ कर रहे हैं. इन आवर टाइम इट वाजंट देयर. माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट. डिसिप्लिन वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय हाउस. And there were no phones, but still we were trusted. Everything we were trusting. That's what I'm telling you कि मैं बचपन से खेलती थी, करती थी. था मैंने कोचिंग ली 12th के बाद 6 months की, कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है. 3 months की कोचिंग ली. उसके बाद जब मैं करती हूँ, ये करती हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा रैंक नहीं आता है, बट मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था. वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आल्सो गोइंग, बट आई टोल्ड माय डैड मुझे ना इंजीनियरिंग नहीं करनी. तो मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा तो तुझे क्या करना है? मैं कहा मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है, इंटेलिजेंट बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं. Yes, yes. तो मेरे इमेजिन, इट्स नॉट व्हाट यू से. मुझे आज भी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्स, उनका कॉन्फिडेंस, उनके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो याद है. फर्स्ट थिंग ही केम मी, ओके फाइन, तू कर लेगी? मैं कहा हाँ, डू इट. सी छोटी सी चीज है, आज के टाइम में हम नहीं. और ये याद पहले मना करते हैं. तुमने सोचा है, तुमने डिस्कस किया, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी तो ज्यादा आ गई है ना, इस जनरेशन के पास नहीं आई है ना. सो देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, पर हम भरोसा करना बंद कर देते हैं. लाइक यू राइटली सेड, मैंने कहा माय फैमिली वाज आल्सो फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मेरे फादर को भी ज्यादा चीजें नहीं पता था. उन्होंने कहा अच्छा तुझे करना है तू कर, यू आर अ शेरनी, जस्ट डू इट मोनिका. आई सेड पापा हाउ आर यू इवन अलाउइंग अ गर्ल ऑफ 17-18 गो एनीवेयर प्लान. मुझे सब कुछ करना था. But then he said yes
and I did it. And I think that भरोसा kept it. यहाँ पे हम पहले बच्चों को ना पहले क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं, तुम्हें पता है उसका करियर का क्या वो होएगा, what is बहुत सारी चीजें डालते हैं. तो उस दिन भी जब मैंने डैड को बोला तो उन्होंने कहा कि जा पढ़ ले. मैं कहा मेरे साथ चलो. कहते पढ़ना किसको है? मैं कहा मुझे. तो कहते मैं कब तक तेरे साथ जाऊंगा. आई वॉज इन क्लास 12th. छोटे शहर की लड़की, दिल्ली जाना था. उन्होंने सुबह 5 बजे मुझे हरियाणा रोडवेज में बिठा दिया. ऐसा नहीं है उस टाइम में गलत चीजें नहीं होती थी, बट ये कॉन्फिडेंस एक पेरेंट का होता है अपने बच्चे के ऊपर. अगर आपको शेरनी बनना था तो उससे पहले आपके फादर शेर थे. 100%, शेर के बच्चे ही 100%. आगे शेरनी और शेर बन सकते हैं. ये समझना बहुत जरूरी है. तो उस दिन जब मैं बैठी, फिर मैं डीयू अकेले गई. मैंने जाके कॉलेजेस के फॉर्म भरे, मैं वापस आई और काफी सालों तक मैं इस गलत फहमी में जीती रही. हाय मैं कितनी बोल्ड हूं ना. मैं अकेले गई, मैंने एडमिशन लिया, मैंने ये किया. और आज मुझे पता चलता है बोल्ड मैं थोड़ी ना थी. बोल्ड माय फादर वाज एट दैट टाइम. इट्स नॉट इजी. आज के टाइम में आई गेट एन नंबर ऑफ SMS की हमारे बच्चे को गड़बड़ जब होनी है, जब है. मेरे फादर ने एक ही चीज, बेटा डर के जीने से अच्छा लड़ना सीखो. एब्सोल्युटली. दैट गिव्स यू मच मोर एनर्जी. तो आपकी चाल, बिकॉज हमारे जो ये फियर्स हैं, हमारी जो एंजाइटी है, हमारी जो एनर्जी है, बिना कहे हमारे बच्चे तक पहुंचती है. आज हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा इस झूले पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा, सड़क क्रॉस करेगा तो सबसे पहले बस आके उसी को मार देगी. बच्चों की लाइफ स्किल्स हम खत्म करते जा रहे हैं. ह्यूमन बीइंग्स की जो सबसे बड़ी, जो पहले का स्ट्रेस था ना, वो सर्वाइवल बेस्ड था. आप समझ रहे हो कि हर कोई सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा था. और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं. लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, हम सब ने वो सीखी. आज का है आइडेंटिटी बेस्ड. कौन कितने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा मोबाइल फोन है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने. ये आइडेंटिटी बेस्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खतरे में आ गया. आज का बच्चा, अगर कल सोचो, जिंदगी का किसी को नहीं पता. सो हैव यू प्रिपेयर्ड योर चाइल्ड फॉर दैट कि कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली एक अच्छी जिंदगी जी सकता है. आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, विच इज अ वेरी बिग फैक्ट. पर अभी भी आज पेरेंट्स जो कंफ्यूज हैं कि हमारे को अपने बच्चे को क्या देना. आपको पता है वो स्कूल्स में कितनी छोटी बात के लिए फाइट करने आते हैं. मुझे पता. नॉट अबाउट जस्ट कि आप स्कूल प्लीज इनको सिखाएं कि व्हाट आर द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, हॉट एंड हाउ ऑल थिंग विल हैपन. वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, वी टॉकिंग अबाउट सो मच थिंग, बट पेरेंट्स कम एंड से कि आपने मेरे बच्चे को धूप में क्यों खड़ा कर दिया. 5 minutes वो बेहोश हो गए, वो गिर गए. सो द थिंग इज दैट we are stuck in very small things, but the survival instincts and whatever we are talking about, and एक human mindset कि after school college वो कैसे सरवाइव करेगा उस जमाने में, वो तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं. और जो शुरू के जो ये ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना मोनिका, मैं बोलती हूँ जब तक बच्चा ये 12, 13, 14 साल का है, इन सालों के अंदर अगर आप साइकोएनालिसिस, फ्रॉइड, साइकोलॉजी की कितनी भी चीजें पढ़ोगे, योर चाइल्डहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके बचपन के अंदर जो ये वैल्यूज सेट हो जाती हैं, जो फियर्स भी हो जाते हैं. समटाइम इट्स ऑल अबाउट फियर्स, समटाइम इट्स मोर अबाउट सिक्योर एंड सेफ्टी. वो एडल्टहुड में जाके दिखते हैं. इफ यू हैव गिवन अ सिक्योर सेफ स्पेस टू योर चाइल्ड, और सेफ स्पेस की कोई बड़ी चीज नहीं है. जो हमारे लिए डेफिनेशन है वही बच्चों के लिए भी डेफिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल, मी एज अ वुमेन, what I'm looking for a safe space in my friends or in my family is what, कि जहां मुझे कोई जज नहीं कर रहा. हाँ, absolutely. It's not like कि मुझे कोई मना नहीं कर रहा, या क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, बट वो फीडबैक मैं ढंग से ले रही हूँ. पीपल आर नॉट जजिंग मी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील सेफ कि इमोशनली लोग मुझे समझ रहे हैं. वो same goes to our kids also. Yeah, because kids had spoken the same thing that even if we have some questions, हमें पता है जब हम आंसर लेने जाएंगे तो हमें ना सिर्फ पहले कंपेयर किया जाएगा, पहले स्टॉप किया जाएगा, तुमने सोचा कैसे, तुमने कैसे. तो वो सेफ एनवायरमेंट ऑफ लिसनिंग वो नहीं मिल रहा है उनको. एंड आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, एवरी चाइल्ड हैज स्पोकन द सेम थिंग, दैट नोबडी इज रेडी टू लिसन टू आवर क्वेश्चंस ओनली. वो कहते हैं कि तुम पता नहीं क्या, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे. बिकॉज सी
we're coming back to again Gen Z is because we're talking for Gen Z. तो मैं वही बोल रही हूँ, पेरेंट्स को भी बोलती हूँ यार, तुम जो करते थे, आई थिंक मी ऑल्सो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम में सिर्फ DD1 और DD2 था, बट मेरे पेरेंट्स जैसे ही बाहर जाते थे तो मैं वो देखने की कोशिश करती थी. हाँ, correct. मतलब ये तो वो तो naughtiness है ना, ये तो करनी है. सेम गोज टू दिस किड्स ऑल्सो, व्हाट दे आर डूइंग इट बाय. हमारे टाइम पे पेरेंट्स बाहर भी कम जाते थे. अब ये भी तो चेंज आया है ना, बिकॉज व्हेन हम उस जनरेशन की बात करें तब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना नहीं आया था. माय मदर वाज वर्किंग, उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज डायनामिक्स. मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सो व्हेन आवर पेरेंट्स वर एट होम, दे वर एट होम विद अस. तो अब चेंज हो गया पूरे का पूरा. अब पहले आई स्टिल रिमेम्बर माय मदर यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो जब वो घर आती थी वो घर पे ही होते थे. ठीक है, आज के टाइम में व्हेन दे कम बैक होम ऑल्सो, बिकॉज वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, वर्किंग कल्चर बढ़ गया है. पहले बड़े प्री डिफाइंड रोल होते थे कि ना फादर बाहर काम करते थे और मदर्स घर पे रहती थी, यूजुअली वर्किंग भी थी, तो टीचिंग प्रोफेशन या इवन डॉक्टर्स ऑल्सो, बट दे यूज्ड टू कम बैक होम. दे कम बैक होम एंड दे यूज्ड टू बी देयर. बहुत ज्यादा दूसरे वाला कल्चर नहीं था. सो आज के टाइम में जो ये सोसाइटी डायनामिक्स बदले हैं, हमने लड़कियों को बाहर जाना सिखाया, बहुत अच्छी चीज है, जरूरत थी, बट लड़कों को घर रहना नहीं सिखा पाया. सो वो गैप आया. गैप आने की वजह से फैमिली डायनामिक्स बिगड़ रहे हैं. फैमिली डायनामिक्स बिगड़ने से क्या है, एक्सपेक्टेशंस हस्बैंड वाइफ की आपस के अंदर, आप सोच के देखिए आज के टाइम में वो नहीं ठीक चल रही है, एंड योर किड्स आर सीइंग दैट. Yeah, absolutely. बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत, इफ अ मदर इज ऑल्सो वर्किंग ऑल द टाइम, समझना पड़ेगा दूसरे पार्टनर को. और जहां पे भी पार्टनर्स आपस में समझ के मिल के चल रहे हैं, वहां बच्चों की डायनेमिक्स भी ठीक चल रही है. बट जहां पे पेरेंट्स की डायनेमिक्स आपस में मैच नहीं कर रही हैं, बोथ आर टू एम्बिशियस, दोनों के एम्बिशंस के साथ it is at the cost of something. Yeah. We but need to ambition understand is that. right. I mean, because it Very is a very good. difficult life. Yeah. Ambition तो important है. Like me and my husband is also ambitious. I'm sure your husband and we you all also are. ambitious. We all are. But then we have to come back to that safe environment where that child is taken care of. Exactly. Right? जैसे basically क्या है, बहुत बार ये guilt parenting में हम हैं. So I'll just ask you some few questions because जैसे you are a parenting coach, including all your laurels which you have. So parents come, so there are some confession cards. Parent बोलता है कि मैम मैं कुछ भी कर लूँ, my husband expects for 10 मिनट के लिए आते हैं कि तुमने, वो आके सिर्फ डांटते हैं मेरे बच्चे को, राइट. मुझे पता है, मैंने पेरेंट के बारे में, बच्चे के बारे में सुन लिया है, मुझे पता है कि आज उसका पूरा दिन है. ही वॉन्ट्स टू जस्ट showcase that आई एम अ फादर एंड तूने पढ़ाई करी नहीं करी, ये नहीं करा, कितने मार्क्स हैं. सो व्हाट शुड अ मदर डू? So there are छोटी छोटी चीजें, because the husband and wife are in that conscious, in that guilt mind. Like me and my husband also, पहले मुझे 10th में लगता था कि हान के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, so Sal was very particular कि क्यों नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे. But I'm in school, so I know how to deal with the children. It took me little time. हम बैठे, हमने डिस्कस किया that if you'll keep talking to them and keep asking them, they will, whole encouragement will go down and all. But अब हमने 12th में एक पूरी वो बनाई है, we'll not say no, we will understand, we'll listen. It's going very beautiful. He respects us, he's us. So that dynamics of a couple misses out while they're growing their children. Very. What is your input to tell them कि भाई क्या करना चाहिए? अब देखिए, सबकी फैमिली के ना डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, हर किसी का, ठीक है ना. आई थिंक आई नो सो मेनी विमेन, मतलब शायद वो जॉब भी नहीं करती हैं, बट दे हैव गॉट सच अ गुड hold of their home itself. It's completely depends upon the personality of a mother. And अगर मैं अपने experiences की बात करूं, I don't have any research data on that. Wherever you see a strong mother, there will be no problem. There will be no problem. Because पता है क्या होता है, mothers guilt में चली जाती हैं. Yes. हम ये करें तो क्या हमारे husband like करेंगे, नहीं करेंगे, क्या उनको ये तो नहीं लगेगा कि हमें नहीं पता. आप छोटो जो काम नहीं करते, मतलब I'm saying me being a leader, managing so many things during the 10th exam, मुझे लगता था shit I know thing, but अगर मैंने हान को नहीं डांटा तो मे बी सल will tell me that नहीं मोनिका तुम शायद गलत कर रही हो, तुम्हें बच्चे को सीरियस. But then when I became stronger, नहीं Salil, let's make it a team, let's do how we have to deal with him, how we have to explain him.
it dynamics changed. Everything went on very sweet. I am happy, child is happy, he is studying and all, कोई tension नहीं है. So I think women guilt should go away to raise the kids. Exactly. Is it Guilty right? parenting के साथ कभी नहीं चलेगा. और the most important thing is अगर husband and wife, they both are not on the same platform for raising a child, वो सबसे ज्यादा confusion create करता है बच्चे के अंदर. उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ की आपस में डायनेमिक्स ठीक नहीं है. सो इसके अंदर बच्चे के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो, सो यू बोथ नीड टू सपोर्ट ईच अदर. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जैसे मेरे घर के अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज माई हस्बैंड इज इन इन्फेंट्री, ही कीप्स मी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई एम इन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. So 110% he knows it. Whatever decision Sunana will take for Nirbhay, it's the best one. So it's very well understood that he will not interfere in that. Yeah, so correct. that understanding needs to be there sometimes, because I know so many, I'll not say even fathers or mothers, कुछ भी हो सकता है इसमें, the another partner, कि मतलब आप हर टाइम बाहर हो और एक जो पेरेंट कॉन्टिन्यूसली जो डिसीजन ले रहा है, जो देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और डिसीजन हर बार ठीक भी नहीं होगा. आई एम 100 it can go wrong. कभी It भी can go wrong. मैंने हमसे एक डिसीजन गलत हो गया था. हम चंडीगढ़ के अंदर गए थे, द सिलेक्शन ऑफ द स्कूल वाज नॉट राइट. निर्भय एकदम, और आई एक्सेप्टेड इट. ठीक है यार, मैं हर मतलब 10th क्लास में 15 स्कूल है, अब कोई ना कोई तो हम भी गड़बड़ कर ही सकते हैं. बट इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड टेल योर चाइल्ड आल्सो, गिविंग अ ब्लेम ईच अदर. तेरी वजह से हुआ, तेरी उस, and that your child also sees it, and we've seen and they many cases like that. learn like that, because the easy thing to do in your life is to blame others for your own thing. If you cannot be the role model, accept the responsibility of your own actions. आप देखो इतनी बड़ी स्किल आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, because when you start blaming the entire world, things are not in your control. And children start taking, एक मतलब बच्चे फायदा उठाने लग जाते हैं. और मैं आप सोच रही हूँ, हम पेरेंट्स हैं, हमने वो पैदा किए हैं, तो हम सबको पता है वो हमारे कितने कंट्रोल में है. बिल्कुल, तो हम किसी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं, तो ये समझने की जरूरत है. सो नाउ दैट वी नो कि पेरेंटिंग में हम ये गिल्ट में है और उसका बच्चा फायदा भी उठा सकता है, राइट? बिकॉज ही नोज दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ऑल, दे ऑलरेडी नो द आंसर्स. उनको पता है मैं अपने पेरेंट के पास जाऊंगा तो वो खुद ही लड़ाई कर लेंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे, और दे विल ब्लेम टू समवन, एंड दिस कॉन्वर्सेशन विल डेड एंड इट्स बेटर व्हाटएवर आई नो आई शुड डील विद दैट. नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ पेरेंट्स इन दिस कंफ्यूजन. काउंसलर से मिलते हैं, सब होता है, किसी ना किसी की एक गलती होती है. Where, because you're from an army background and you believe that discipline is important. I heard in one of your conversation in one of our schools, you said कि आपने निर्भय को फोन अभी तक नहीं दिया था, 17 था. So, of course उसने मांगा होगा. He is also a Gen Z. He is also going to the parent. Even my son, right? So, he is also expectations है, ये चाहिए, वो चाहिए. But is it important is it important that a parent should have one barrier, a one-stop discipline that a no is a no? Because I have believed that. Lot of people say that, you have a very beautiful life, beautiful family, your child is also in the control, बहुत खुश भी रहते हैं, कैसे मैनेज करते हो, काम भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो. Because I said we have created some rules हैं. रूल्स घर में थोड़े होने चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए. For me, when child was 2 years old until now he is 17, we have decided a no, then it's a no. Then child is, agreeing कि अगर मेरे पेरेंट ने बाउंड्री बनाई है तो I have to accept that, I have to appreciate, I have to respect that. And आपने भी वही किया. I saw that this is the reason I related. Do you think discipline is important? Very important यार. हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर पेरेंट गिल्ट में चले जाते हैं ना. लाइफ chaotic क्यों होती है? Because there is no discipline, there is no routine. Your brain loves pattern. Yeah. ठीक है, अगर आपका as a होम, आपके घर के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, नहीं होगा. आई स्टिल रिमेम्बर व्हाई आज के टाइम में मुझे किसी ने उस टाइम में टाइम मैनेजमेंट की क्लास नहीं सिखाई. बट मैंने एंटायर माई लाइफ मैंने अपने डैड को कभी भी 5 मिनट ग्राउंड पे लेट जाते नहीं देखा. इफ ही हैज टोल्ड मी दिस, तो वो दिस ही है, उसका दैट नहीं हो सकता था. ठीक है, इट डज नॉट मीन कि उन्होंने हमें सुना नहीं. ये डेली हैबिट्स की बात कर रहे हैं, बट लाइफ के जब बड़े डिसीजंस होते हैं तब हमें बच्चों की सुननी भी चाहिए. सो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. हम जो डेली हैबिट्स हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर डिसिप्लिन की बात नहीं करते हैं. चल
1 घंटा मोबाइल देख ले। हाँ एग्जैक्टली, एक घंटा मोबाइल का 1.5 होता है, 1.5 का 2 होता है, 2 के बाद नैगिंग होती है, नैगिंग के बाद मूड खराब होता है, मूड खराब के बाद घर का सुकून खराब होता है। व्हेन आई वाज डूइंग इट फॉर निर्भय, तो मैंने एक ही चीज सोची, मैं कहा मोबाइल मैं दे दूं कितनी जरूरत है। उसके बाद मैं कहा अगर मैं दे दूंगी, कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम ना मॉनिटर कर लेंगे। हाँ कैसे मॉनिटर पर होगा? उस मॉनिटरिंग से डेली का जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, बिकॉज दे आर किड्स, एंड व्हेन यू आर अ किड और व्हेन यू आर स्क्रोलिंग इट गिव्स यू एकदम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस मिलती हैं बच्चों को, इंस्टेंट उनको हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से दे गेट एडिक्टिव, एंड इट इज एडिक्टिव। और दोज एडिक्शंस वो एकदम से 14-15 साल की उम्र में नहीं आता, 14-15 के साल में तो वो रिबेल करना स्टार्ट करते हैं। वो जो उसका सीड ऑफ एडिक्शन है, इट स्टार्टेड व्हेन दे वर 6 months old, 1 year old, व्हेन दे वर नॉट हैविंग फूड। और सबसे आसान चीज हमें लगती है कि खाना, फोन दे दो और खाना खिलाने के लिए। देयर आर सो मेनी रिसर्च विच सेज मोनिका कि ड्रग एडिक्शन से ज्यादा भी कोई बुरी एडिक्शन है वो फोन एडिक्शन ही है। देयर इज नो अदर थिंग। और फोन आदि से ज्यादा जिंदगी जो खराब है, जो डायनामिक्स बिगड़े हुए हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फोन। आज मेरी लाइफ, मैं ये नहीं कह रही मेरी लाइफ में एज अ पेरेंट चैलेंज नहीं है भाई, बट कंपैरेटिवली मुझे कम लगते हैं, बिकॉज निर्भय डज नॉट हैव हिज पर्सनल फोन। अब वो फोन नहीं होता है तो सारा दिन स्क्रोलिंग नहीं होती है, स्क्रोलिंग नहीं होती है तो मुझे मॉनिटर नहीं करना पड़ता, मॉनिटर नहीं करना पड़ता ना तो वो नैगिंग नहीं होती है। तो मतलब दैट मींस अगर हमने कोई डिसीजन लिया अपने बच्चे के लिए, सो वी शुड अबाइड बाय दैट, वी हैव टू स्टे बाय इट। वो जिद करेगा, 1 हफ्ता करेगा, 1 महीना करेगा, दे आर वेरी स्मार्ट, 2 महीने बाद भूल जाएंगे, और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। और आई थिंक यही जो स्ट्रगल है ना, हम बहुत जल्दी लूज आउट कर जाते हैं। वी नो वी लूज दिस बैटल वेरी इजी, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं अपनी वैलिडेशंस ना, और मोस्टली ऑल्सो एज अ मदर ऑल्सो, आई नो सो मेनी मदर, उनको ऐसे लगता है कि इफ माई चाइल्ड इज डूइंग वेल ना, ये मेरी एक और वैलिडेशन है। हाँ करेक्ट। आई नो सो मेनी पीपल, बच्चा अगर थोड़ा सा भी रोने लगता है ना, तो वो जो मांग रहा है फटाफट दे दो, वरना दुनिया क्या सोचेगी कि मैं एक अच्छी मदर नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, क्योंकि हम तो बातें ही कर रहे हैं, बिकॉज वील कम, वी बोथ हैव बॉयज। बहुत छोटी सी चीज है, व्हेन आई वाज वेरी यंग आई यूज्ड टू सी, जैसे हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं राइट, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रो रहे होते थे, तो वो रास्ते में ना बलून मिलता है, कोई गिफ्ट मिलते रहते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल्स में, आप दिल्ली के हो, इधर उधर सब जगह मिलते हैं। सो आई सीन चिल्ड्रन यूज्ड टू क्राई, एंड वो इमीडिएटली पेरेंट दे देते थे। वही खाने के टाइम पे, ये नहीं तो ये ले लो, ये ले लो। I used to somehow not like that whole idea. When I thought, when I'll have my boy na, I will not do that. And literally, पता नहीं कैसे, because I happened to be in the ship with my husband, with my child, he was young and all. I made sure, उसने, आपको पता है मेरे बच्चे ने सबसे पहला नाम सुना था डोंट टच, बिकॉज वी वर ऑन द शिप। छोटा सा बच्चा, हर चीज, तो मुझे उसका डोंट टच, so his first word was only don't touch. I ensured that a no is a no. उसने जब भी मांगी ना वो चीज कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं कहा नहीं, हाँ नो, आई विल नॉट से, वील से नो। उसके माइंड में उसने आज तक कभी कुछ एक्स्ट्रा मांगा नहीं। ही इज वेरी, आई फील दैट वो शायद मेरे माइंड में किसने बताया था कि नो इज अ नो, कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था, उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चे को आप बचपन से नो टू नो बोल दोगे ना, तो वो स्टिक रहेगा उस बात पे। एंड आई कैन सी, बिकॉज आपने बात बताई थी कि जो बच्चा चाइल्डहुड में सीखता है वही धीरे धीरे, क्योंकि एनवायरमेंट वैसा बनता जाता है। टुडे इफ आई टेल हाँ नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट दिस विल डू, trust me, he never comes back, because he knows that the parents have thought about it and it is right for me. I think we both as mothers, we both have boys, we are talking about this only, वो environment हमको खुद create करना पड़ेगा घर पे, so that child is happy, parent are not, parent are guilt free, and also not कि हमें अपने बच्चों को ये देना है तो हमें ये नहीं दिखाना। whatever life, like I was saying, you're ambitious, show your children you're ambitious, and you're working towards it, you're also managing the family. Whatever a child will see, he will also do it in his own life later, isn't it right? Exactly, but वही हो जाता है, हम वो कर नहीं पाते हैं। Yes, तो मिस आउट कर जाते हैं। प्रॉब्लम इज विद दिस ओनली कि हम वो कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी सीज कि मतलब जो भी बिहेवियर हम बन रहा है बच्चे का, चाहे वो जिद्दी हो रहे हैं, चाहे वो जिद्दी नहीं हो रहे हैं, रीइंफोर्समेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिद कर रहा है और अगर मैंने उसको वो दे दी, दैट मींस हिज बिहेवियर इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स, तो वो दोबारा से जिद करेगा, वही चीज उसको मिलेगी और आपको फिर देनी भी और पड़ेगी। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं होगा तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी ना, कि नहीं मिलेगी। उससे वो बिहेवियर कब हो जाता है, वो रोना। तो निर्भय हमने
शुरू से थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ के मदद तो होती है। तो मैंने निर्भय को, बेटा जो चीज रोओगे तो वो तो नहीं मिलेगी, जिस चीज की जिद करोगे तो वो, बट दे आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो। तो फिर वो बड़े प्यार से बोलता था, मम्मा ओनली वन प्लीज दे दो। सो दे अंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स से क्या मांगना है और कैसे मांगना है। सो मे बी इनवर्टली हम वो भी तो सिखा रहे हैं, विच इज नाइस। आई थिंक ना दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। अगर हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, अगर आज हमें हर चीज दिखाने में दे अंडरस्टैंड आवर एनर्जी। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं और बहुत सारे बच्चे भी देखे हैं, ठीक है, और मैं सबको यही बोलती हूँ, चाइल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। हम कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें बोलते हैं अपने बच्चे को, नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैल्यूज, बट अनकॉन्शियसली वट एवर इज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, वो कब नजर आता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारी लाइफ कियोटिक होती है। उस टाइम एज अ पेरेंट आप कितने काम हो, आप उस टाइम हम फोन भी दे देते हैं, उस टाइम हम सब कुछ कर देते हैं कि ठीक है अब बी स्ट्रेस या तुम ये करो। एंड चिल्ड्रन मे बी दीज डेज आर टेकिंग आउट एडवांटेज ऑफ दैट। बट इन सब चीजों में एनर्जी लगती है, सो दैट मींस नो पहले कर दें। और एनर्जी हम लगाना नहीं चाहते। और आई थिंक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं। हम इतनी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हमें हर चीज चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए, और जो कभी हो भी नहीं सकती, एक टाइम पे हर चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए कंपैरिजन्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। They're talking to their friends and all, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, there is always a comparison. All the time. So I think that comparison pressure comes to these kids, and then these Gen Zs these days ना, क्योंकि आप I don't know, आप जितने भी Gen Z से मिलते होंगे, मैं रोज ही because we're into this, I have seen ये हम लोग पागल हो रहे हैं, मतलब we are the ones who are running this battle. Now somehow Gen Zs have become very normalized. अगर आप उनके Instagram pages देखो, उनके Instagram में कोई पोस्ट नहीं है, they're using it for a conversation but not for reflecting what as we are showcasing. Yeah. So they are very sorted. वो बहुत settle हो गए हैं। हम ही अपनी confusion में ना उनको शायद गलत बोल रहे हैं। Have you ever come across any parent or have you come across any Gen Z like मुझे that? ना अलग दिखते हैं, मतलब डेली मिलती हूँ, आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज, तो मेरी क्लास के अंदर 70 अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, सो डिफरेंट हैं सब। हाँ, 10 बच्चे ऐसे होंगे क्लास के अंदर जिनसे मैं हर रोज इंस्पायर होती हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मतलब ना इस उम्र के अंदर इतनी समझ, इतना विजन, इतना डेडिकेशन होना इज नॉट इजी। वहीं बट 60% मुझे ऐसे भी लगते हैं जिनको ये तो क्या पता होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, उन्हें ये भी नहीं पता हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। Because of this social media, and then they got so much exhausted and they live in that virtual world all the time कि basic human connect से वो बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। That is also there. because उनको कोई सुन नहीं रहा, उनकी शायद समझ नहीं रहा है, so they are investing their time in social media. Because कहीं ना कहीं ये इमोशनल एम्प्टीनेस की वजह से आ रहा है ना, फिर बिकॉज ये बचपन से ही आ रहा है कि इफ योर पेरेंट्स आर देयर, इफ यू आर लिसनिंग टू देम, यू आर एबल टू मेक फ्रेंड्स। मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है बच्चा मोबाइल कब देखता है, आप सोच के देखिए, व्हेन दे आर फ्री, व्हेन पेरेंट्स आर नॉट देयर विद देम। जब छोटा बच्चा भी होता है कि जब मुझे अपनी किचन साफ करनी है, या मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, या मुझे अपना कोई मेल भेजनी है, मुझे कुछ करना है, देन आई हैव टू एंगेज माई चाइल्ड एंड आई एंगेज विद द फोन. That's the easiest thing. That's the easiest thing. Yes. Or the TV or anything, the easiest thing. और वो easiest thing 10 साल के अंदर उनका पैटर्न बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है. 15-16 साल के अंदर जब हमारे एम्बिशंस जागते हैं हमारे बच्चों के लिए, 10th आ गई, 11th आ गई, 12th आ गई, बट फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स बट दे वर डूइंग इट, उसके बाद वो रिबेल करना स्टार्ट. वहां पे चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट है. आप जैसे आप SIPs के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके रिटर्न्स आपको, आप हर जगह इन्वेस्टमेंट कौन सी बेटर बोलते हैं? लॉन्ग टर्म है ना. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए आप क्या बोलते हो कि इट्स ऑलवेज गुड. चाइल्ड इज ऑल्सो द सेम एंड इट्स योर इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप कितनी टाइम, एनर्जी, प्यार इन्वेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट उससे ही मिलेंगे. हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. ना मैं पेरेंटिंग कोच बन सकती हूँ, ना आप बन सकते हो. कोई पेरेंटिंग मैनुअल नहीं है. सबकी अपनी एक जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने फैमिली डायनामिक्स हैं. आपको आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, एक मदर से बेहतर कोई नहीं जान सकता. सो शैल आई कम बैक टू दैट इतनी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी कंफ्यूजन है, हम इतने टेक को ढूंढ रहे हैं कि चीजें हमारी ठीक हो जाए, बट देन
आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. हमें सबसे पहले बैक टू द बेसिक्स अपने घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने का, बातें करनी पड़ेगी, डिस्कशन करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जैसे हम पहले करते थे. आई थिंक, डोंट यू थिंक? क्योंकि सी, I am not saying advancement should be there. IT, we are getting an IT enabled country. We should be. That's absolutely okay. But घर ना वही होना चाहिए एक normal, wherein things are normal. Nobody is judging you. Then maybe all these children and us, all of us will get normalized. So वो trust भी वापस आ जाएगा शायद. कोडिंग की बात करे जा रहे हैं, कोपिंग की कोई सिखाई नहीं है. हाँ, कोई नहीं सिखा रहा. एब्सोल्युटली. 8, 9, 10 के बच्चे को जब आप एलन और आकाश और उसमें धक्का दे सकते हो ना, आई कांट टेल यू कि मतलब उससे ज्यादा कोई भी वो चीज हो सकती है. ये जो कंपटीशन को, यू नो व्हाट, आप तो इसकी बात कर रहे हो, इट बिगैन फ्रॉम पहले 10th 11th 12th, फिर 9th 8th, अब तो 7 6 से शुरू हो गया. और ये जो कंपटीशन आया ना, मैं सच बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में ये 95 99 के बाद ना, स्कूलों ने जब ह्यूमैनिटीज देना बंद कर दिया, हर किसी स्कूल के अंदर सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर. तो ये पिछले 30 साल की जो जनरेशन्स है ना, ये सारी की सारी, हमसे जो पहले वाले हमारे पेरेंट्स की ना, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे. आप समझ रहे हैं, वो हिस्ट्री पढ़ते थे, सब्जेक्ट्स बनते थे, इंसानों के बारे में पढ़ते थे. उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन कनेक्ट बहुत बेहतर था. आज के टाइम में हर चीज साइंस, ह्यूमन बींग्स आर नॉट, हम कंप्यूटर मशीन नहीं है. वी आर इमोशनल, वी आर इमोशनल बींग्स. वी ऑल नीड्स टू बी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड. बेसिक हमें चीजें चाहिए. हम बेसिक्स को छोड़ के ना बड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली से. बड़ी को छोड़ दो, बड़ी को छोड़ दो, क्योंकि बड़ी तो चलती रहेगी. सी, वी आर बेसिक वैल्यूज पे काम ऑफ एडवांसमेंट, हमें तो करना ही पड़ेगा. एंड आज मैं अगर ये बोल दूं, सी, फोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक बैक टू बेसिक, घर ना घर होना चाहिए. बिल्कुल. सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट रिजॉल्व, बिकॉज चाइल्ड ना, सबसे पहले आपका चाइल्ड ना सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको लगेगा मेरा कोई है. द ट्रस्ट फैक्टर, यू वोंट बिलीव इट, बिकॉज इतना ज्यादा हो गया है. अभी भी हमारे स्कूल में वो थे, क्या कहते हैं, दिस we had this farewell in our schools. Lot of people were saying this. अब मैं ना बोलने लगी हूँ कि please bring back trust in life, right? If you bring back trust ना, एक trust ऐसे ही आएगा, कोई किसी की सुनेगा, कोई समझेगा, घर नॉर्मल हो जाएगा. Parents will start trusting each other कि जो हमने decision शायद लिए together for own child, like you saying, और SIP, कि हमारी SIP perfect है, आज रिटर्न नहीं देगी, बाद में रिटर्न देगी, और देगी, और फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाएगी. तो ये जो that whole chaos of this confusion wherein we are putting all the blame to our children, सब कुछ करने के बाद भी बोल रहे हैं बच्चे अच्छे नहीं है, तो गलत है. बिकॉज पहले बाहर ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, सोशल मीडिया वैलिडेशन है, आइडेंटिटी क्राइसिस इन बच्चों को हो गया है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है. बाहर पहले ही बहुत कियोस और नॉइस है. हाँ. अगर आप घर को भी एक ऐसी जगह बना दोगे ना, तो बच्चे हिल रहे हैं और हमें हिलते हुए भी दिख रहे हैं. मतलब यू ऑल आर एबल टू सी दैम दैट. डेफिनेटली. जिस दिन बच्चा आपसे लड़ना बंद कर देता है, वो ज्यादा डेंजरस है. व्हेन योर चाइल्ड बिकम्स साइलेंट और आपको लग रहा है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस दिन समझिए आपकी लाइफ में उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट दे आर नॉट एबल टू शेयर. और एज अ पेरेंट, मतलब व्हेन आई सी द किड्स जो एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स के हो, चाहे वो किसी भी चीज के हो या और भी हो, मुझे ऐसा लगता है, वेयर वॉज आई एज अ पेरेंट एट दैट टाइम. So now ma'am, you're rightly saying, because children have stopped asking questions, because उनको पता है कि if they'll ask some right questions, उनको कभी right answer नहीं मिलेंगे, उनको ज्ञान मिलेगा, which is non-relevant in this era. This is the reason they're lost, and वो सबसे ज्यादा dangerous है, like we were talking. Imagine we both are raising boys, right? We all are worried कि आगे क्या होएगा. अगर हमने उन्हीं को गलत रेस किया या उनके जो माइंड में चल रहा है, अगर उनको राइटली नहीं सुना समझा, then there is going to be a problem. Absolutely. There is no doubt in that. The only thing is, हमें बच्चों को छोड़ना पड़ेगा. That's it. हम बहुत ज्यादा बहुत शेल में रख दिया बैठे हैं, बहुत शेल में है, बबल पेरेंटिंग कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि वो कोई गलती ही ना करे. सो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चा तभी बनेगा जब वो गलती करेगा, वो गिरेगा, वो उठेगा, वो संभलेगा, and when he can come back. That is what is required. Because it's his experience, his way of dealing it. Exactly. अगर हम उन्हें गलती ही नहीं करने देंगे तो वो नहीं सीखेंगे. आज हम उनके साथ हैं, कल हम उनके साथ नहीं होंगे. I know so many students जिनके पेरेंट्स 12th तक नोट्स बना के देते हैं,
सारा टाइम उनके बोर्ड के एग्जाम है तो उनका जिंदगी पूरी लेफ्ट की राइट शिफ्ट हो जाती है, वो बच्चा कॉलेज में जाके इंडिपेंडेंटली हमेशा स्ट्रगल करता है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक देयर ओन टाइम टेबल्स, हाउ टू हैंडल देयर ओन लाइफ. सो इट्स बेटर जब तक आप हो 7, 6, 7 तक बच्चे को गाइडेंस देना 1 तक है, उसके बाद बच्चे को छोड़ देना चाहिए. Absolutely. मेक योर ओन मिस्टेक्स, गलती करो. अभी एक बार की बात है जो हमने की थी. माई सन हैव नॉट मेड द फाइल्स. तो टीचर मैं कहा मैम मैं नहीं कहूंगी, इट्स योर जिम्मेवारी, आप इसको बताइए. आप डांट लगा सकती हैं, आप टीचर हैं. और मैं बच्चों को भी बोलती हूँ आज के टाइम में बच्चे ईगो यहाँ लेके घूम रहे हैं. पेरेंट्स डांट मारने से डर रहे हैं, टीचर्स डांट मारने से डर रहे हैं. रेजिलियंस कहाँ से आएगी? Schools are struggling, parents are कि confused. टीचर्स कुछ कह ही नहीं, क्यों नहीं कह सकते? हम उनसे प्यार करते हैं, मोर द रीजन. बट प्रॉब्लम क्या है कि हम प्यार भी नहीं दिखा पा रहे. जब आप प्यार दिखाओगे तो वो डांट अपने आप बर्दाश्त करेंगे. सो ऑलवेज आई टेल दिस एग्जाम्पल बिकॉज पेरेंटिंग इज लाइक अ इमोशनल बैंक बैलेंस, कि आप उसके अंदर इमोशंस डालते हो, पॉजिटिव डिपॉजिट्स डालते हो, प्यार करके, समझ के, अंडरस्टैंड करके, यू नो, वो जैसे हैं उनसे वैसे प्यार करके. बिकॉज हमारे एम्बिशंस कभी पूरे नहीं होंगे. विड्रॉल्स करने पड़ते हैं भाई, डिसिप्लिन करना हमारी जिम्मेवारी है. उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज सेट करना, आई नॉट यूज द वर्ड रिस्ट्रिक्शन, बाउंड्रीज सेट करना हमारी जिम्मेदारी है. ये विड्रॉल है. जब तक आपके बच्चे का डिपॉजिट हाई है, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकता. प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है, इमोशनल डिपॉजिट तो होने बंद हो गए बिकॉज वी आर नॉट एट होम. व्हेन वी आर एट होम फिर हमें ऑल ऑफ द सडन हम जाग जाते हैं, इन्होंने होमवर्क नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया. उस टाइम हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, विड्रॉल, कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. टाइम हमारे पास है नहीं उनको देने के लिए. डिपॉजिट बढ़ गया, बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया. 4, 5, 10 साल तक ठीक ठाक चलता है, सुन लेता है. 10, 12, 13 साल का होने के बाद उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा आप क्या कह रहे हो. आई हैव बीन रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स कि हमारे बच्चे हमारे फोन नहीं उठाते हैं. तो मैं उनको बोलती हूँ ये सिचुएशन आज नहीं पहुंची, वो तो पहले की थी. ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो पिछले आपने किया, रिजल्ट्स आपको आज देखने को मिल रहे हैं. तो जितने भी यंग पेरेंट्स हैं, मुझे पता है एम्बिशंस बहुत अच्छे होते हैं, सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है, करियर में आगे जाना भी अच्छा लगता है. आप देखिए वो किस कॉस्ट पे हो रहा है. और अगर आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं आगे आने के लिए वो है, तो वी रियली नीड टू बी माइंडफुल. सो वट एवर लिटिल वी आर डूइंग इट, इफ यू टॉक अबाउट मी एज अ मदर, मुझे आज भी ऐसे लगता है वट एवर लिटिल आई एम डूइंग इज जस्ट फॉर निर्भय. सो वेन एवर वी बिकम अ मदर, हमारी दुनिया आई थिंक हमारे बच्चों के चारों तरफ ही घूमनी शुरू होती है. एंड दैट्स अ फीलिंग विच वी हैव इट. और आई थिंक ये हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है. ठीक है, ये हम मेल्स पे नहीं डाल सकते, फादर्स पे नहीं डाल सकते. इट्स अ फीलिंग. और वो जिसको आ रही है, प्लीज गो हेड विद दैट. वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है. बिकॉज पता है अपने लिए हर इंसान कर रहा है. जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करने लगते हो ना, वो ज्यादा एम्पावरिंग होता है. You become a role model then for your child, and not saying that these are not the, sometime I don't say is a sacrifices. लोग मेरे से पूछते हैं फौज छोड़ दी, क्यों छोड़. मैं कह उस टाइम डायनामिक्स ऐसे थे. अगर कई बार आपको सपोर्ट मिल सकती है, तो मैं इतनी बार बोलती हूँ एम्बिशंस होना बुरी नहीं है. यू हैव एम्बिशन, गो अहेड विद दैट. बट अगर आपका बच्चा नॉट एट द स्टेक ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ, यस, चाइल्ड्स टाइम. अगर सोचिए आपको बेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट सीईओ भी बनना है, फिर आपको फ्रेंड्स के साथ भी टाइम चाहिए, फिर आपको अपना मी टाइम भी चाहिए. ठीक है, फिर आपको अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम चाहिए. तो जब बच्चा ये शुरू के 10-15 साल है ना, उसमें हम इतना नहीं निकाल सकते. बिकॉज दैट इज एट द एंड गोइंग टू बी कॉस्ट एट समथिंग. योर चाइल्ड इज 15 ईयर्स, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है. ऐसा कुछ नहीं है. और करियर की बात इतना भी नहीं होता. इफ यू हैव अ पोटेंशियल, बाय दैट टाइम कीप ग्रोइंग ऑन यू, कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स. ठीक है, घर पे रह के बहुत चीजें हो सकती है, बाहर मेक योर सपोर्ट सिस्टम यार. इट्स नॉट दैट बैड. बट उसमें भी हमें ऐसा होता है कि हमें किसी की सुननी नहीं है. Sometimes when your parents comes and stays with you, restrictions लगती हैं, because वो फिर हमारे लिए बाउंड्रीज सेट कर. कई बार शायद हमारे बच्चों के लिए हमें उन बाउंड्रीज को भी करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें ना, तो ये बड़ा you only understand. No, I totally understand. It's straight coming from a parenting coach and a mother and a person from army who's disciplined, and that is what we
today whatever conversation, it was all came from our heart, because Yeah, it is. this is what we are hearing, this is what we are understanding. But I think crux yahi hai that we have to go back to the basics. I think we have to have a very healthy emotional environment at home. अब हम कैसे भी create करें, जैसे हम हमारे हाथ में। बजट्स बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, वी हैव टू क्रिएट, अच्छा हमें एक एनवायरनमेंट बनाना है, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे, कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, व्हाटएवर हमारी एनर्जी लगेगी। बट अगर हमने एक बार वो इकोसिस्टम बना लिया, then I think we're sorted for life. Right? और लास्ट में मोनिका, एक पेरेंटिंग टूल, मतलब ना मेरे को लगता है उससे ज्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा आज के टाइम के लिए। आजकल बच्चा फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत स्केरी होता जा रहा है, बिकॉज एट द एंड हेल्थ इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। प्लीज मेक श्योर कि आपका बच्चा एक स्पोर्ट्स जरूर खेल रहा है, which you did mention in all your orientations. I was very impressed. Yes, because मतलब फॉर माई सन, मैं उसको पिछले जहां मुझे मौका मिल रहा है, आई मेक श्योर कि वो शाम को घर नहीं रहता है। 4 से 6 बजे का जो टाइम है, योर चाइल्ड शुड बी अंडर सम सुपरविजन ऑफ सम कोच। पार्क्स का कल्चर इज नॉट the way it was for us, because हमारे टाइम के अंदर source of information was only DD1 and DD2. Now the source of information with every kid is different. We cannot isolate, but वहां पे जाके भी बच्चे मोबाइल फोन्स ही लेके आ रहे हैं। But if they are under a supervision coach, तो physically बच्चा आपका ट्रेन नहीं हो रहा है, mentally भी हो रहा है, डिसिप्लिन भी आ रहा है, ट्रैक सूट एक रूटीन देता है बच्चे को, तो वो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल सोशल लाइफ से थोड़ा सा एक चेंज तो मिलेगा, बहुत मिलेगा। और ये पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। देखो, आसान नहीं होता है बच्चे को लेके जाना, लेके आना, आप बंधते हो, बट ये तो सोचो आप किसके साथ बंध रहे हो यार, अपने बच्चे के साथ। वही तो मैं कह रही हूँ, एनवायरनमेंट के लिए थोड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, और ये कुछ सालों का है, सिर्फ 10-12 साल, जिंदगी बहुत लंबी है, ये 10-12 साल। और जो वो टाइम होता है ना, एक स्पोर्ट्स जर्नी, अगर आप मेरे से पूछो, मैंने सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखा है ना, वो टेनिस मॉम बन के सीखा है। जब मैं निर्भय को स्कूल से पिक करती हूँ ना, जब बच्चा स्कूल से आता है, वो इमोशनली चार्ज अप होता है। सोचो, किसी दिन अच्छा स्कूल होगा, किसी दिन बुरा होगा, एक दिन टीचर से डांट पड़ी, जब वो आएगा। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट पेरेंट्स, टीचर्स बहुत हमारी संस्कृति के अंदर, अगर आप हमारे कल्चर की भी बात करोगे ना, दे हैव वन स्टेटस। गुरुदेव दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो पिलाए। और मदर्स का भी सेम स्टेटस है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां बना दी। इन दोनों को क्वेश्चन मत कीजिए। टीचर्स भी इंसान है, गलती कर सकते हैं। वो आप एक बच्चे को देख रहे हो, वो क्लास में 30 बच्चों को देख रहे हैं। एक दिन शायद से गलत डांट भी पड़गी, बट दैट्स ओके। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती है। हमें बच्चों को सिखाना है, बेटा गलत चीज भी हो सकती है, माफ करना सीखो। बट उसी दिन अगर आप उस बात को पकड़ के बैठ जाओगे, कोई टीचर कैसे कहेगी, वो आप टीचर की वैल्यू कम नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। बट आप बिल्कुल जो आपने पॉइंट बोला है, यू डोंट नो, बिकॉज हमारा एक अनम्यूट सारे प्रिंसिपल्स के साथ भी होना है, बिकॉज यही तो मिस आउट हो रहा है। लाइक वी आर सेइंग दैट अ मदर हैज टू टेक दैट ओनर्स कि मैंने सही डिसीजन लिया है। वो जो बाद में आई एम कमिंग बैक अगेन टू द ट्रस्ट, सो ऑल द टीचर्स एंड एटलीस्ट द मदर्स ओनली एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लग जाए, तो आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अ लॉट विल हैपन बेटर। एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स यार, नोबडी इज परफेक्ट। क्या घर में मेरे से गलती नहीं होती है? वो भी इंसान है, वो भी घर से आ रही है, वो भी एक आधी बार गलती कर सकती है। विद स्कूल्स टीचर्स कोई गलत, किसी की इंटेंशन गलत नहीं होती है, टीचर की कभी गलत नहीं हो सकती है। हर टीचर बहुत कॉम्पिटेंट भी नहीं होगा, बट इमोशनली। और अभी भी ना मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, यू आर वर्किंग विद स्कूल्स एंड ऑल ना, बिकॉज नाउ वी रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट। नाउ सिर्फ सिलेबस पूरा कराना नहीं हो सकता हमारा, कि मतलब ना सिलेबस कोई भी पूरा कर लेगा, किड्स आर नॉट कमिंग फॉर दैट इंफॉर्मेशन एनी मोर। हमें सिखाना है बच्चों को इमोशंस को समझना, लोगों को फॉरगिव करना, चीजों को भूलना, उसके लिए लाइट रहना करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को बुला के समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस लिटिल बिट ऑफ वर्क ओनली, कि ना मुझे ऐसा लगता है जेन ज़ी समझ जाएंगे।
बिकॉज हम नहीं हमारे समझ रहे, पेरेंट्स हम ना अटके हुए हैं कहीं पे। तो अगर Yeah. हम समझ जाएंगे तो उनको मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो Because हमसे they will automatically वो see. हमसे देख के सीख लेंगे। Yeah. अगर आज मैं माफ करने की किसी को हिम्मत रखती हूँ ना, तो कल मेरा बच्चा कर देगा। Absolutely. अगर आज मैं अंदर रख के सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके हर रोज The child is seeing the same thing. they are seeing the same thing. वो घर जाके वो यही बताएंगे, मैम मम्मा आज मेरी टीचर ने मेरे साथ ये किया, मेरी टीचर ने वो बिल्कुल। किया, और- बट मदर शुड आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। एग्जैक्टली घर पे अगर आज मैं इमोशंस अपने फ्रीली दिखा रही हूँ ना, मैं आराम से रो सकती हूँ। हाँ, मैं आराम से दिखा रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी टुडे, हाँ। आज मेरा ये मूड खराब हो हाँ। गया। कल आपका बच्चा भी आके Yeah, दिखाएगा। correct. कई बार हम अपने बच्चे के सामने ना परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं ऐसे करती थी, आई एम नहीं है यार, वही हम ज्ञान वक्त है, वही तो कह रही हूँ कि हाँ। सबको लगता है हम इनसे क्यों पूछे, बिकॉज वो तो ज्ञान ही देंगे, और ये टाइम हमें ज्ञान का नहीं, हमें या तो राइट आंसर बता दो। और सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा ना अपने बच्चों के साथ ना अपने डिफिकल्ट टाइम शेयर कर। बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि मैंने निर्भय के साथ, बेटा एक बार मैं 9th क्लास में थी और मेरे 100 में से 53 मार्क्स आए थे और मैंने जो चट्टू खाया था नानू गाना, बट उसके बाद आई कुड रिकवर इट। तो बताना जरूरत है कि बच्चों हमने को कैसे यार, रिकवरी भी करी, हमने भी उससे करी यार, फेलियर्स तो होंगे, आएंगे यार। आई डिड नॉट स्टडी, दैट वाज माई, मैं खेलने में ही लगती रह गई, पूरा टूर्नामेंट ही खेल के आ गई तभी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये नंबर कहीं काम नहीं आने हैं। AI आ गई है, आधे से ज्यादा काम मेमोरी वाला ये सब कर देंगे। अब जो बचेंगी वो ह्यूमन स्किल्स बचनी है। बच्चों को वो दिखाना शुरू कर दो, बच्चों को बैलेंस करना सिखाओ, इमोशन सिखाओ, लाइफ स्किल्स सिखाओ, घर के काम सिखाओ। बिकॉज इवन द गर्ल्स यार, कि मतलब अपनी चाय बनाना, अपना ब्रेकफास्ट बनाना, अपनी लॉन्ड्री लगाना, अपने काम। मुझे आज भी याद है, आज मेरी मेड नहीं आती है तो मुझे तकलीफ नहीं होती, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरी मम्मा नहीं होती थी तो मुझे झाड़ू लगानी है, मेरी बहन पोछा लगाएगी, मम्मा खाना बनाएगी तो मैं बर्तन साफ करूंगी। तो these are the life skills and which makes you feel independent when you're not dependent on others. कोई भी काम है मैं कर लूंगी। आज मुझे कहीं भी जाना होता है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड कि मैं उससे डिसीजन लूंगी, वो करूंगी, गाड़ी लूंगी, फिर जाऊंगी। आई कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑल बाय माई सेल्फ। बट ये मैंने आज नहीं सीखा है, ये मुझे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था। तो बच्चों को listening, नहीं सिखा सकते। trust and encouragement. Very true. I think this might resolve, and what we all discussed today कि let's bring back that basic, that environment. Let's invest basic घर को नहीं बना लेते हैं, आराम से खाना खाना, आराम से रोना, आराम से लड़ना, आराम से फिर प्यार करना, एक दूसरे को सॉरी बोलना है डेली। No pretension at least in the family. हाँ, एंड टेलिंग दोस किड्स ऑल्सो समटाइम्स ना एज अ पेरेंट बता दो, देखो बेटा हम भी तुम्हारे एनवायरमेंट में ग्रो नहीं हुए हैं। हाँ। जितना तुम्हें मुश्किल हो रही है उससे ज्यादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना पेरेंट्स को कि हमें नहीं समझ में आ रहा। हाँ। ये बहुत बड़ा बैरियर है। लिटरली जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पीपल आर फीलिंग दिस थिंग कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो और रही है। जहाँ आप एक्सेप्टेंस सीख जाओगे ना, सब चीजें ठीक हो जाएगी। पता प्रॉब्लम क्या है, सब ना एक दूसरे को समझाने में लगे। तो जेनजीज से मैं हमेशा कहती हूँ, बेटा थोड़े तुम समझ लो, तुम ज्यादा समझदार हो। और थोड़े पेरेंट्स को मैं कहती हूँ यार, समझाने की बजाय थोड़ा समझो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा समझ लो, और समझने से ना रिश्ते बेटर होते हैं। बदलता कोई नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा चीजें सुलझ जाती है। दैट्स इट। और कोई मतलब ऐसा कोई टूल नहीं है जिसपे हम बहुत ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। आई थिंक सिंपल चीज है, ज्यादा टाइम मत दो बच्चे को, ठीक है, कि वो मोबाइल्स के ऊपर बैठे रहे। जितना दूर रख सकते हो, दूर तभी होंगे जब वो ज्यादा घर पे नहीं होंगे, घर पे तब नहीं होंगे जब वो किसी पैशन के पीछे भागेंगे। उनको पैशन रिकॉग्नाइज करने दो, आज 1 है, कल 2 होगी, कल 3 होगी। स्पोर्ट्स में डाल दो, आधी चीजें वो अपने आप सीख जाएंगे, आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। बच्चे को गाड़ी में ले जाना लाना थोड़ा आसान है, आई एम टेलिंग यू, रादर देन घर पे रह के सारा दिन नाना करना। उस लड़ने से बहुत बेहतर है कि आप बंद रहे हो अपने बच्चे के साथ, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड डेवलप कीजिए। सारी जनरेशन अच्छी है, ऐसा कुछ so I think we've come to this thing that जनरेशन तो सारी अच्छी है। so ऐसा नहीं है जेनजीज आर लेजी या वो सुनते नहीं है। आई थिंक हमको सुन नहीं रहे हैं। सो थैंक यू कैप्टन सुनैना फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आपको इतना सुना है। इंटेंशन ऑफ अनम्यूट विद इग्निशा इज दिस ओनली टू ब्रिंग दैट एंड ब्रिज दैट गैप, एंड आई थिंक दैट ब्रिजिंग दैट गैप इज ओनली थिंग कमिंग बैक टू द बेसिक्स। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स कम टू एन एनवायरमेंट, लेट्स क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर देर इज एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर। उसमें जैसे मैम ने बोला इन्वेस्टमेंट भी होएगा, उसमें हमें थोड़े से सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, बट आई थिंक व्हाट बेस्ट थिंग विल हैपन इज द चिल्ड्रन विल बी एब्सोल्युटली सेफ
and then they will listen to you also, and they will tell you their stories also. And I think when the conversations will take place in a right and a positive format, सब अच्छा हो जाएगा. And as we rightly said, generations are all good. We just have to make ourselves better every day and trust each other. Yes. Exactly. So let's trust each other and we tell. Exactly. तो परफेक्ट पेरेंट्स नहीं बनना है, नहीं बस बनना है. इमोशनली अवेलेबल बन Emotionally जाएंगे, available हर रोज बनना है. गलती करेंगे, हर रोज सीख लेंगे, Yeah. जोर से जप्फी देंगे अपने बच्चों को, हाँ. एंड जस्ट स्टे विद. Yeah. That's Yes. it. Thank you. Thank you so much.